हेलो एवरीवन, आई एम प्रिंस और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे लॉजिक ऑफ होम्योपैथी फ्रॉम स्टुअर्ट क्लोज फिलॉसफी। और ये जो टॉपिक है हम बेसिकली दो पार्ट में कंप्लीट करेंगे। ये है इसका पार्ट 1। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि आखिर ये लॉजिक होता क्या है। सो व्हाट इज लॉजिक? लॉजिक मीन्स अ साइंस ऑफ रीजनिंग। एवरी पर्सन यूजेज लॉजिक बट डज नॉट नो। एवरी होम्योपैथ यूजेज लॉजिक while prescribing homeopathy. He applies logical principles. Logic gives good prescription or bad prescription. Means कोई भी पर्सन जब भी कोई भी डिसीजन लेता है तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजनिंग जरूर होती है। मीन्स लॉजिक जरूर होता है। नाउ दिस लॉजिक इज ऑफ टू टाइप्स। पहला है लॉजिक ऑफ फॉर्म या फिर जिसे फॉर्मल लॉजिक भी कहा जाता है। दूसरा है लॉजिक ऑफ रियलिटी जिसे लॉजिक ऑफ ट्रूथ भी कहा जाता है। और ये जो लॉजिक ऑफ ट्रूथ है ये फर्दर डिवाइडेड होता है टू टाइप्स में। पहला है इंडक्टिव लॉजिक और दूसरा है डिडक्टिव लॉजिक। Now what is formal logic? Formal logic is a false logic because it is a logic of form. Means it is going to take outer skeleton or outer form of phenomena. It does not take account of the matter of reasoning of the things reasoned about. अब इसका मतलब ये है कि ये जो भी आंखों से visible means जो outer skeleton of the phenomena है ये उसी को consider करता है. So it does not concern least with the truth and falsity of the statement. It just provide the general reasons to relate the beginning and the end of phenomena, and its consistency is foolish. A quack, for example, a quack, a rogue, a dispenser, all practice medicine and they may get result, but ज़्यादातर केस में वो पेशेंट्स को ठीक नहीं कर पाते हैं। मीन्स इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो फुलिश होती है। इट्स कंसिस्टेंसी इज फुलिश एंड इट इज बिकॉज दे प्रैक्टिस ऑन एम्फेरिकल बेसिस। एम्फेरिकल बेसिस मीन्स बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस और फ्यू एक्सपेरिमेंट्स, बट नॉट बेस्ड ऑन एनी लॉ ऑफ प्रिंसिपल्स एंड नॉट एनी फंडामेंटल प्रिंसिपल इज अप्लाइड. So they give large attractive doses, combinations, and these are empirical medicines based on past experience or experiments. Occasionally, they may have got results. They claim themselves specialists, no medical education, no scientific knowledge. They get results but not scientific. So there is no law, no permanent results, and results are not repeatable. So a man sits on the road with drugs, example herbs, colorful liquid drugs, and people also go and seek advice. Now what is difference between this man and a homeopath? Homeopath gives single similar remedy and it is practiced by scientific law of similars and conclusions are consistent with premises. Results are demonstrably true and they can be repeatable. Now what is logic of truth? Logic of truth is inductive logic and deductive logic. Lord Bacon, Mill and Dr. Hahnemann, they have used logic. Inductive logic believes on facts with reality. So their base or fundamentals or assumptions are verified. Now what is the purpose of inductive logic? Its purpose is discovery and use of truth. Now what is the requirement of inductive logic? Its requirement is premises must be true, which are the results of true and valid observations of the facts based. So requirement of inductive logic is premises must be true and it is a result of true and valid observation. So true and valid observation help us to conclude that premises which we are going to assume is truthful. So for the deduction, the concept of generalization is used or applications are done. Fact must be reliable, truthful, real. Induction is from premises to conclusion. Means inductive logic is from premises, means from assumption of any condition or base of any condition we can reach to any conclusion. It means the base or any phenomena must be assessed for its reality or truth, and this phenomena will lead us to conclusion, and conclusion is in the form of law. The road to great unknown is dark and full of pit of falls, but the electric lamp of inductive logic lights the way safely from known to unknown. Inductive logic is the logic of truth. Homeopathy is based on inductive logic. In homeopathy, conclusions are consistent with the premises, and premises are found on truth. In homeopathy, data is derived from direct observation of the facts and pure experiments. Means ड्रग प्रूविंग जो हम करते हैं होम्योपैथी में, एक हेल्दी पर्सन को मेडिसिन दे के ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें क्या क्या सिम्टम्स आ रहे हैं ये, और उसको नोट किया जाता है, और इसी को कहा जाता है प्योर एक्सपेरिमेंटेशन. और इसी से हमारी क्या बनी है, मटीरिया मेडिका बनी है. और जब हम पेशेंट की केस टेकिंग लेते हैं तो उस दौरान हम क्या कर रहे होते हैं, हम पेशेंट को डायरेक्टली ऑब्जर्व कर रहे होते हैं. सो इन होम्योपैथी डाटा इज ड्राइव्ड फ्रॉम डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ऑफ द फैक्ट्स एंड प्योर एक्सपेरिमेंट्स. सो डिस्कवरी ऑफ लॉ ऑफ सिमिलर्स इज बेस्ड ऑन इंडक्टिव लॉजिक. सो अब ये इंडक्टिव मेथड ऑफ साइंस क्या है? सो बेसिकली जो इंडक्टिव लॉजिक के प्रिंसिपल को हम साइंटिफिक रिसर्च में जो अप्लाई कर रहे हैं ना, इसी को कहते हैं इंडक्टिव मेथड ऑफ साइंस. So inductive method of science is the application of
principle of inductive logic to scientific research, and this method is originated by Lord Bacon, written in Novum Organum, and John Stuart further worked on inductive logic. नाउ इंडक्टिव मेथड जो होता है लॉजिक में, ये एक साइंटिफिक मेथड होता है जो प्रोसीड करता है बाय द प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, और इसमें होते हैं टोटल 4 स्टेप। पहला होता है एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन, दूसरा होता है करेक्ट इंटरप्रिटेशन, तीसरा होता है रेशनल एक्सप्लेनेशन, चौथा होता है साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। सो बेसिकली इस सारे के सारे स्टेप्स को मैं आपको समझाऊंगा सिंकोना बार्क एक्सपेरिमेंट के थ्रू। सो बेसिकली जो पहला स्टेप है वो क्या है, एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन। एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन में क्या किया जाता है, एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन किया जाता है ऑफ द फिनोमेना। मींस जैसा कि आपको पता है कि सिंकोना बार्क एक्सपेरिमेंट के अंदर हैनीमैन ने क्या किया, हैनीमैन क्या कर रहे थे, वो क्यूलेस मटेरिया मेडिका को ट्रांसलेट कर रहे थे, और ट्रांसलेट करते करते उन्होंने वहां पर देखा कि सिंकोना जो है मलेरिया को ठीक कर रहा है, और उसमें उसका एक्सप्लेनेशन क्या दिया हुआ है, क्योंकि उसका बिटर टेस्ट है और उसका टोनिक एक्शन होता है स्टमक पे, इस वजह से ये मलेरिया को ठीक कर रहा है। बट जो हैनीमैन का साइंटिफिक माइंड था वो इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं कर सकता था, क्योंकि उन्होंने देखा कि उन्होंने कई सारे पेशेंट्स को कई सारी दूसरी बिटर चीजें देखी, बट वो तो मलेरिया को ठीक नहीं कर पा रहा था। मींस हर बिटर चीज मलेरिया को ठीक नहीं कर पा रही थी। इसके बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने खुद सिंकोना लेकर देखा, तो उन्होंने पाया कि उनको फीवर और चिल्स प्रोड्यूस हुए। तो और फीवर और चिल्स किस में प्रोड्यूस होते हैं, मलेरिया में प्रोड्यूस होते हैं, है ना, मतलब मलेरिया लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इन सब चीजों को उन्होंने ऑब्जर्व किया। मींस उन्होंने क्या किया, एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन। उसके बाद दूसरा स्टेप क्या आता है, करेक्ट इंटरप्रिटेशन। सो करेक्ट इंटरप्रिटेशन में क्या करते हैं, करेक्ट इंटरप्रिटेशन में हम करते हैं ऑफ ऑब्जर्व्ड फैक्ट सो दैट टू अंडरस्टैंड देम इन रिलेशन टू ईच अदर। मींस इसमें उन्होंने क्या किया कि उन्होंने उसको इंटरप्रिटेट, जो उन्होंने ऑब्जर्व किया उसको इंटरप्रिटेट सही ढंग से किया। मींस उन्होंने क्या इंटरप्रिटेट किया कि सिंकोना जो है वो मलेरिया को ठीक कर रहा है, नॉट ड्यू टू इट्स बिटर टेस्ट एंड टोनिक एक्शन ऑन स्टमक, बट इट इज ड्यू टू बिकॉज इट प्रोड्यूसेस फीवर एंड चिल्स। उन्होंने ये इंटरप्रिटेट किया कि सिंकोना मलेरिया को ठीक कर रहा है इस वजह से नहीं कि उसका बिटर टेस्ट है और टोनिक एक्शन है स्टमक पे, बट इस वजह से क्योंकि वो प्रोड्यूस करता है, अगर सिंकोना किसी हेल्दी पर्सन को दिया जाए तो वो प्रोड्यूस कर रहा है फीवर एंड चिल्स। तो उन्होंने इस चीज को जो उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने क्या किया, उसका करेक्ट इंटरप्रिटेशन किया। तीसरा स्टेप क्या आता है, रेशनल एक्सप्लेनेशन। तो इसमें हम क्या करते हैं, सो रेशनल एक्सप्लेनेशन ऑफ द फैक्ट्स बाय रेफरिंग देम टू देयर रियल कॉज और लॉ। तो इसमें उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या बोला, सिंकोना क्योर्स मलेरिया नॉट बिकॉज ऑफ इट्स बिटर टेस्ट एंड टोनिक एक्शन ऑन स्टमक, बट बिकॉज इट प्रोड्यूसेस मलेरिया लाइक सिम्टम। क्योंकि फीवर और चिल्स किस में देखने को मिलते हैं, मलेरिया में देखने को मिलते हैं। मींस उन्होंने ये बोला कि ये मलेरिया को ठीक इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि जब इसे एक हेल्दी पर्सन को दिया जाए तो ये एक मलेरिया लाइक सिम्टम्स प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक रेशनल एक्सप्लेनेशन दिया। चौथा स्टेप क्या आता है, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। तो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन में हम क्या करते हैं, पुटिंग द फैक्ट्स इन सच अ कोऑर्डिनेशन दैट सिस्टम रीच्ड शैल एग्री विद द रियलिटी एंड रिजल्ट्स आर कंफर्म्ड बाय कंफर्म्ड एंड वेरीफाइड। और जो रिजल्ट्स हैं वो कैसे होते हैं, कंफर्म्ड एंड वेरीफाइड होते हैं। मींस इसमें क्या किया उन्होंने सिंकोना के अलावा बहुत सारे ड्रग्स की ड्रग प्रूविंग की, और ऐसा उन्होंने ऑब्जर्व किया कि अगर कोई मेडिसिन जो सिम्टम्स हेल्दी पर्सन में प्रोड्यूस कर रही है वही सिम्टम्स वो ठीक कर रही है। ठीक है, तो मींस उन्होंने यहां से एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया, और वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या था कि डिसीज क्योरिंग प्रॉपर्टीज लाइज इन द डिसीज प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग सब्सटेंस। सिमिलर डिसीज सिम्टम्स आर रिमूव्ड बाय द रेमेडी व्हिच हैज द एबिलिटी टू प्रोड्यूस सिमिलर अफेक्शंस। मींस यहां से वो एक कंक्लूजन, एक जनरल लॉ तक पहुंचे जिसे कहा जाता है लॉ ऑफ सिमिलर्स। तो सारे स्टेप्स को अब थोड़ा एक एक करके थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। तो पहला है एग्जैक्ट ऑब्जर्वेशन। तो इसमें क्या हुआ था, सिंकोना क्योर्स मलेरिया रिटन इन क्यूलेंस मटेरिया मेडिका ड्यू टू इट्स बिटर टेस्ट एंड टोनिक एक्शन ऑन स्टमक। सेकंड क्या था, करेक्ट इंटरप्रिटेशन। इसमें क्या था, सिंकोना क्योर्स मलेरिया नॉट ड्यू टू इट्स बिटर टेस्ट एंड टोनिक एक्शन ऑन स्टमक बट इट प्रोड्यूसेस फीवर एंड चिल्स। थर्ड है रेशनल एक्सप्लेनेशन। सिंकोना क्योर्स मलेरिया नॉट बिकॉज ऑफ इट्स बिटर टेस्ट एंड टोनिक एक्शन ऑन स्टमक बट बिकॉज इट प्रोड्यूसेस मलेरिया लाइक सिम्टम्स। Fourth is scientific explanation. Disease curing properties lies in the disease producing properties of the drug substance. Similar disease symptoms are removed by the remedy which has ability to produce similar affections. और यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाला, लॉ ऑफ, एक लॉ बनाया जो कि हमारा क्या है, लॉ ऑफ सिमिलर्स, जिसपे हमारी होम्योपैथी बेस्ड है। अब मैं इसे थोड़ा समराइज कर देता हूं। तो सिंकोना बार्क एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ कि सिंकोना जो है क्योर करता है मलेरिया नॉट ड्यू टू इट्स बिटर टेस्ट एंड टोनिक एक्शन ऑन स्टमक बट बिकॉज इट प्रोड्यूसेस फीवर एंड चिल्स। और इसके लिए डॉक्टर हैनीमैन ने क्या किया था, खुद ही 4 grams ऑफ गुड चाइना ट्वाइस अ डे लिया, और जब उन्होंने ऐसा किया तो उनमें क्या डेवलप हुआ, फीवर और चिल्स डेवलप हुआ। और जैसे ही उन्होंने सिंकोना लेना बंद किया तो ये सिम्टम्स डिसअपीयर हो गए। सो सिंकोना बार्क एक्सपेरिमेंट के थ्रू हैनीमैन ने क्या किया, मलेरिया ठीक होता है सिंकोना से, मीन्स सिंकोना क्योर करता है मलेरिया को। इसका क्या एक्सप्लेनेशन दिया, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस मलेरिया लाइक सिम्टम्स। सो
यहाँ इसके बाद उन्होंने क्या किया, साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दिया, और इसके लिए उन्होंने यही चीज़ बहुत सारे ड्रग्स के साथ की, बहुत सारे ड्रग की ड्रग प्रूविंग की, और यहाँ से और इस चीज़ को बार बार वेरीफाई किया, कंफर्म किया, और उसके बाद एक साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन तक वो पहुंचे। और वो साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या था, द डिसीज क्योरिंग प्रॉपर्टीज लाइज इन डिसीज प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी, मीन्स जो डिसीज क्योरिंग प्रॉपर्टी है वो लाई करती है डिसीज प्रोड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ द मेडिसिन। और यहाँ से उन्होंने एक लॉ बनाया, एक लॉ कंक्लूड किया, वो क्या था, लॉ ऑफ सिमिलर्स। और वो लॉ ऑफ सिमिलर्स क्या था, सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर। और यहाँ से क्या हुआ, एक डेरिवेशन हुआ एक लॉ का फ्रॉम वन एक्सपेरिमेंट, मींस एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से एक जनरल कंक्लूजन तक पहुंचे, और इसी को कहा जाता है इंडक्टिव लॉजिक। और जो होम्योपैथी है वो बेस्ड होती है इंडक्टिव लॉजिक पे। सो इंडक्टिव लॉजिक में क्या होता है, एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से एक जनरल कंक्लूजन, एक जनरल लॉ बनाया जाता है, जैसा कि यहाँ पर हुआ, और इसीलिए कहा जाता है कि होम्योपैथी बेस्ड होती है इंडक्टिव लॉजिक पे। वहीं जो डिडक्टिव लॉजिक होता है ये इसका जस्ट अपोजिट होता है। वहां पर हम क्या करते हैं, इस लॉ का एप्लीकेशन करते हैं, मींस इस जनरल लॉ को हम एक पर्टिकुलर केस को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। तो अगर हम पर्टिकुलर टू जनरल जा रहे हैं तो इसे कहा जाता है इंडक्टिव लॉजिक, और अगर हम जनरल से पर्टिकुलर की तरफ जा रहे हैं तो इसे कहा जाता है डिडक्टिव लॉजिक। तो मींस डिडक्टिव लॉजिक थोड़ा अपोजिट होता है इंडक्टिव लॉजिक के। सो इंडक्टिव लॉजिक में हम एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से हमने एक जनरल कंक्लूजन, एक जनरल लॉ बनाया, मींस पर्टिकुलर टू जनरल। वहीं डिडक्टिव लॉजिक में हम क्या करते हैं, इस लॉ का एप्लीकेशन करते हैं टू ट्रीट द पेशेंट, मींस हम क्या करते हैं, इस जनरल लॉ का, इस जनरल कंक्लूजन का इस्तेमाल करते हैं एक पर्टिकुलर केस को ठीक करने के लिए, मींस जनरल टू पर्टिकुलर जाते हैं, और इसको कहा जाता है डिडक्टिव लॉजिक। सो अब डिस्कस करते हैं मिल्स थ्योरी ऑफ कॉजेशन के बारे में। जैसा कि अब इसके नाम से ही पता चल रहा है, मिल्स थ्योरी ऑफ कॉजेशन मींस ये जो थ्योरी है ये हेल्प करती है किसी भी फिनोमिना के कॉज को आइडेंटिफाई करने में। तो इसमें पहला है मेथड ऑफ एग्रीमेंट। मेथड ऑफ एग्रीमेंट क्या कहता है, मेथड ऑफ एग्रीमेंट कहता है अ कंडीशन यूनिफॉर्मली प्रेजेंट इज अज्यूम टू बी द कॉज ऑफ द कंडीशन और फिनोमिना, मींस जो कंडीशन यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है उसी को एज्यूम कर लेना एज द कॉज ऑफ दैट फिनोमिना। अगर मैं इसको आपको एक एग्जांपल से समझाऊं तो जो सेंटर ऑफ ओशन है वहां पर जो टेक्टोनिक प्लेट्स हैं, अगर उसमें जब अर्थक्वेक आता है तो सुनामी वेव्स आती है एट द सी शोर। तो अब इस एग्जाम्पल में सुनामी का कॉज क्या होगा, अर्थक्वेक होगा। सो जो अर्थक्वेक कंडीशन है इसी को हमने क्या मान लिया, कॉज मान लिया सुनामी के फिनोमिना के होने का। सो अर्थक्वेक इज द कॉज ऑफ सुनामी वेव्स। सो यहां पर जो कंडीशन यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है, जो अर्थक्वेक यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है, यही कॉज है सुनामी वेव्स का एट द सी शोर। सो इसी को कहते हैं मेथड ऑफ एग्रीमेंट। मेथड ऑफ एग्रीमेंट क्या है, अ कंडीशन यूनिफॉर्मली प्रेजेंट इज अज्यूम टू बी द कॉज ऑफ द कंडीशन और फिनोमिना। तो सेकंड है मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस क्या कहता है, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट व्हेन कंडीशन इज प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ एन इवेंट व्हेन कंडीशन इज एब्सेंट। तो अगर इसको समझाने के लिए मैं आपको अपने पहले वाले एग्जांपल की तरफ ही ले चलता हूं, तो वहां पर हमने क्या एज्यूम किया था कि जो अर्थक्वेक है वही कॉज है सुनामी का। तो अगर अर्थक्वेक सेंटर ऑफ ओशन के टेक्टोनिक प्लेट्स में हो रही है तो सुनामी भी आ रही है, और अगर अर्थक्वेक सेंटर ऑफ ओशन के टेक्टोनिक प्लेट्स में नहीं हो रही है तो सुनामी भी नहीं आ रही है। मींस सुनामी हो आती है कब, जब कंडीशन क्या प्रेजेंट है, अर्थक्वेक की, और सुनामी एब्सेंट होती है कब, जब कंडीशन जो कि अर्थक्वेक है वो एब्सेंट है। तो ये क्या जो एज्यूम जो हमने किया था कि अर्थक्वेक कॉज होगा सुनामी का, ये जो अजम्पशन है ये एक्सेप्टेबल है। सो यही है मेथड ऑफ डिफरेंस। मेथड ऑफ डिफरेंस क्या है, हैपनिंग ऑफ एन इवेंट व्हेन कंडीशन इज प्रेजेंट एंड एब्सेंस ऑफ एन इवेंट व्हेन कंडीशन इज एब्सेंट। सो वो जो कंडीशन मींस जो कॉज है वो, यानी जो हमने एज्यूम किया था वो एक्सेप्टेबल है, देन द assumption इज एक्सेप्टेबल एंड द कंडीशन इज द कॉज, मींस जो अर्थक्वेक है वही कॉज है सुनामी का। यही है मेथड ऑफ डिफरेंस। तीसरा है मेथड ऑफ कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन। अब ये क्या कहता है कि साइमल्टेनियस वेरिएशन इन सिमिलर डिग्री ऑफ कंडीशन एंड इवेंट एस्टैब्लिशेस द कैजुअल रिलेशन। अब इसका मतलब क्या है कि जो कंडीशन और इवेंट है उनके बीच में एक रिलेशन दिखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कि अगर उस कंडीशन की इंटेंसिटी मोर है तो उस इवेंट की भी इंटेंसिटी ज़्यादा होनी चाहिए, और अगर उस कंडीशन की इंटेंसिटी कम है तो वो इवेंट भी कम इंटेंसिटी का होना चाहिए, तभी हम मानेंगे कि वो कंडीशन कॉज होगा उस इवेंट का। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे फिर से अर्थक्वेक वाले एग्जाम्पल से समझाऊं तो अगर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो सुनामी की भी इंटेंसिटी ज़्यादा होगी, और अगर अर्थक्वेक की इंटेंसिटी कम है तो सुनामी की भी इंटेंसिटी कम होगी। तो ये क्या इंडिकेट करेगा कि जो अर्थक्वेक की जो कंडीशन है यही कॉज है उस सुनामी का। सो यही है मेथड ऑफ कॉन्कॉमिटेंट वेरिएशन।
फोर्थ इज मेथड ऑफ रेजिड्यू। अब ये मेथड ऑफ रेजिड्यू क्या कहता है? आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम अ फिनोमिना द पार्ट ड्यू टू कॉज ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड, द रिमाइंडर इज ड्यू टू सम अदर कॉज। अब इसका क्या कहने का मतलब है? इसको मैं वही अपने पुराने वाले अर्थक्वेक वाले एग्जांपल से समझाता हूँ। सो अगर अर्थक्वेक ना हो, अर्थक्वेक एब्सेंट हो, अगर फिर भी सुनामी आए तो हो सकता है उस सुनामी के पीछे कोई और रीजन होगा, कोई और कारण होगा, कोई और कॉज होगा। यही है मेथड ऑफ रेजिड्यू। मींस आफ्टर सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम अ फिनोमिना, मींस जो सुनामी की फिनोमिना है उससे अगर मैं अर्थक्वेक को सब्सट्रैक्ट कर दूं जो कि एक इस्टेब्लिश्ड कॉज है, जो कि एक ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड कॉज है सुनामी का, और अगर फिर भी सुनामी आए द रिमाइंडर इज ड्यू टू सम अदर कॉज, तो हो सकता है उस सुनामी के पीछे कोई और कारण होगा। यही है मेथड ऑफ रेजिड्यू। चलिए इसे एक और एग्जांपल से समझते हैं। सो डेरिवेशन ऑफ लॉ ऑफ सिमिलर्स, सिंकोना क्योर्स मलेरिया नॉट बिकॉज ऑफ इट्स बिटर टेस्ट बट इट्स एबिलिटी टू प्रोड्यूस फीवर एंड चिल्स, मींस मलेरिया लाइक सिम्टम्स। सो सिंकोना मलेरिया को क्योर करता है इसलिए क्योंकि वो मलेरिया लाइक सिम्टम प्रोड्यूस करता है हेल्दी पर्सन में, है ना, नॉट बिकॉज ऑफ इट्स बिटर टेस्ट। सो अगर कोई और बिटर मेडिसिन या कोई भी दूसरी मेडिसिन अगर हेल्दी पर्सन में मलेरिया लाइक सिम्टम प्रोड्यूस ना करे और फिर भी मलेरिया को क्योर कर दे, तो हम कहते कि हाँ, जो मलेरिया को क्योर करने का जो रीज़न है, जो कॉज है, वो हो सकता है कुछ और हो, है ना। बट हमने बार बार रीप्रूव किया, कंफर्म किया, वेरीफाई किया, तो हमने पाया कि सिंकोना मलेरिया को क्योर सिर्फ इसीलिए कर पा रहा है क्योंकि वो हेल्दी पर्सन में मलेरिया लाइक सिम्टम प्रोड्यूस करता है। और यही से हमने अपना लॉ ऑफ सिमिलर ड्राइव किया जो कि रियल और ट्रू लॉ है। ठीक है, तो यही है मेथड ऑफ रेजिड्यू। Now, before Lord Bacon, no attention was given to facts. He appealed to people to stop speculating and go directly to nature in search of truth. He demolished many false systems, example, beliefs, past experiences, ideas passed to next generation without experimentation. Restored logic to its true place as the guide to truth. Now, induction and deduction are simply opposite way in arriving at conclusions. तो जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी समझाया था कि इंडक्शन एंड डिडक्शन थोड़े एक दूसरे के अपोजिट होते हैं, मैं एक और बार आपको ये समझा देता हूँ। सो इंडक्शन क्या होता है? सो इंडक्शन क्या है? फ्रॉम अ पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट जनरल कंक्लूजन इज ड्रॉन, मींस एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से हम एक जनरल कंक्लूजन तक पहुंच रहे हैं, तो इसे इंडक्शन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा सिंकोना बार्क एक्सपेरिमेंट था, ये एक मान लो ये क्या था, हमारा एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट है, सिंकोना बार्क एक्सपेरिमेंट, और इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम एक जनरल लॉ, एक जनरल कंक्लूजन तक पहुंचे, अपना लॉ ऑफ सिमिलर्स तक। तो ये क्या है? हम कहां से कहां जा रहे हैं? हम एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से हमने एक जनरल लॉ ड्राइव किया, लॉ ऑफ सिमिलर्स। ये क्या है? इंडक्शन। वहीं अगर मैं इस लॉ का इस्तेमाल, ये जो लॉ ऑफ सिमिलर्स है, इस लॉ का इस्तेमाल किसी पर्टिकुलर केस, इस जनरल लॉ का इस्तेमाल एक पर्टिकुलर केस को ट्रीट करने में करूं, मींस अब मैं कहां जा रहा हूं? जनरल टू पर्टिकुलर जा रहा हूं, इस लॉ को अप्लाई कर रहा हूं, तो ये क्या है? डिडक्शन है। सो एप्लीकेशन ऑफ जनरल प्रिंसिपल टू पर्टिकुलर केस इज कॉल्ड डिडक्शन। सो इंडक्शन क्या है? एक पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट से हम एक जनरल कंक्लूजन तक पहुंच रहे हैं, मींस पर्टिकुलर टू जनरल जा रहे हैं, तो ये इंडक्शन है। वहीं डिडक्शन इसका अपोजिट है। ये क्या है? एप्लीकेशन है। सो अगर हम एक जनरल टू पर्टिकुलर जा रहे हैं, मींस एक जनरल लॉ का इस्तेमाल किसी पर्टिकुलर केस में कर रहे हैं, या जनरल कंक्लूजन का इस्तेमाल किसी पर्टिकुलर केस में कर रहे हैं, मींस जनरल टू पर्टिकुलर जा रहे हैं, तो ये क्या है? डिडक्शन है। सो आगे अगर हम चलें तो लॉजिक इज अ साइंस ऑफ इन्फरेंस एंड जजमेंट कैन इन्फर फ्रॉम अदर जजमेंट। टू रीजन अ लॉजिक इज अ साइंस ऑफ रीजनिंग। In homeopathy, discovery of law is based on inductive logic and application of law is based on deductive logic. Every mind conceives the ideas, judgment which are primary and certain. Every mind uses logic every minute because of our ideas, and we are applying judgment and doing reasoning. Otherwise, we would not have any foundation. Idea is first a particular assumption and then agreed is generalization. List of garments is called clothes. Heating water to boil, note the temperature 100 degrees Celsius, then drive a law that boiling point of water is 100 degrees Celsius. From Sincona Bark experiment, we drive a law of similars. So discovery of homeopathy is based on inductive logic, and inductive logic is conclusion drawn from particular premises to drive a law. Means in inductive logic, we are going from particular to general, and application of law is based on deductive logic. And deductive logic is inferences drawn from what will happen on consequence of application of law, and in deductive logic, we are going from general to particular. Foundation of homeopathy. How ideas are formed. Something is predicted, it is assumed, then it is affirmed. Afterwards, same thing can be affirmed or denied, and facts are noted. Foundation of homeopathy is based upon solid concrete composed of broken rock of hard facts, united by the cement of great natural principles, that is our law of similars. It is joined to the foundation and held together in all parts by the framework of logic. Now, logic of homeopathy. Logic is a science of reasoning. Good reasoning leads to truth and bad reasoning leads to error. Dr. Hahnemann reasoned disease cured by medicine that have power to excite a similar affections.
The only way to reason this is to give medicine a healthy person and observe the effect on the healthy person, as he would be only kind of a person in whom affections similar to disease could be excited. So Dr. Hahnemann for several years tested the effect of drug on himself, family, friends and students, and he collected the data scientifically and systematically. He searched a medical literature for record of poisoning and accidental cure, formed a journal of therapeutic medication, established healing by medication upon sound basis and law of similars. सो इसी के साथ लॉजिक ऑफ होम्योपैथी का पार्ट 1 कंप्लीट होता है। लॉजिक ऑफ होम्योपैथी के पार्ट 2 में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक इन होम्योपैथी, और इसमें हम इन सारे कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो तब तक के लिए खुश रहें, मस्त रहें, जय हिंद।